Yes, yes, please. Please sit down. Thank you, sir. So, Abhay, what was your optional in the mains? So there were three optionals of mine. One was the SRA, TPA and equity. The other was Hindu law and Mohammedan law. And so the third one was, sorry, I'm not. TPA and something. Actually, what is the difference between section 5 and 6 of the Specific Relief Act? Sir, section 5 and 6 are both related to the property rights, but in the initial one, that is section 5, it doesn't relate to the ownership of the property, rather the possession. And in the second one, that is section 6, it relates to the ownership of the property, subject to the restriction that the government, there is a timeline of 6 months in the. Are you sure? Yes, sir. Okay, whether the judgment of section 6, if the judgment comes under section 6, the judgment shall operate as res judicata in the proceedings of section 5. Sir, it is subject to the Article 62 and 63 of the Limitation Act, and that depends if there is. आप वाइस वर्सा तो नहीं बता रहे हैं? Sir, as far as I know, then I'm right. Okay, what is dying declaration? Sir, dying declaration is one of the statement which is given by a person. It doesn't matter if he is in expectation of death or not. It can be interpreted under section 32 of the Indian Evidence Act, and it is the last statement which is given by a person before his death, which could be a conclusive evidence to convict the accused. When the statement of a dead person becomes the dying declaration? Sir, there are certain reasons under when the dying declaration becomes admissible. That is, if the person is not available to be easily approached, or he is dead, or cannot with reason. Whether the statement recorded under section 161 of CRPC can be used as DD? No, sir. As far as I know, it can't be. Whether the statement made in the FIR can be used as DD? Yes, sir. It could be made as dying. It could be treated as. So why the statement recorded under section 161 cannot be used as DD? Sir, it is always preferred that if the statement is made under section 164 and in front of a judicial magistrate, then it has more evidentiary value as compared to a statement made to the police. Okay, ठीक है sir, please. जी सर. Abhay, what do you mean by common intention within the meaning of section 34 of IPC? Sir, common intention, as has been specified or interpreted it in section 34 of Indian Penal Code, can be termed as this is a common intention in terms of any act which is further towards the commission of a crime, and all the individuals who are involved in the crime are treated in the same manner, that all of them will be accused of the same crime which one of them has done. And what is the difference between common intention and similar intention? Sir, there is a very fine line of difference between common intention and similar intention. If you could allow, then I may answer it with an instance. Okay. So, for example, in common intention, there is a certain crime which is need to be committed by all the individuals, and they have that prior intention to commit the crime. But in terms of the similar intention, it is more common to the common design that they don't have the prior intention which is being shared by all the individuals, but the actual crime which is being committed is same to be committed in the mind of all the individuals. Okay. And what is mandatory injunction? Sir, mandatory injunction is one type of injunction which states that it mandates the individual to stop doing something or not to do something per se. It states that the court orders individual, for example, to stop building a wall against the property of an individual, or to destroy the same. This is mandatory injunction is more of a permanent in nature. Okay. Abhay, what consideration and object of an agreement is lawful? Sir, consideration and object of a as has been mentioned in section 23 of Indian Contract Act, that it should not be unlawful, it should not be barred by law, or
has any illegal intention, an illegal consideration within it. Okay. There are certain stages, there are certain stated comments within section 23. As of now, I am not able to. Okay, okay. Abhay, one last question to you. What is judgment in RAM? Sir, judgment in RAM is a judgment which is specified to all the individuals and affect the public at large. Is there any provision in Indian Evidence Act regarding judgment in RAM? Sir, if I may recall, section 91 states about the judge. Yes, sir. Section 91 in terms of the contract grant and other disposition, it states that judgment in RAM will be applicable as well as in Okay, section okay. 40. 41. Okay. Sir. अभय ये बताइए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Sir, of the president. प्रेसिडेंट जुडिशरी Okay. Sir, there are two processes in terms of president and the judicial member of the Honorable High Court and Supreme Court. So for the president, there need to be a written 14-day notice which is to be floated in the parliament, and then absolute majority needs to be ascertained, that is of 2/3 majority of all the members of the parliament. But in case of the honorable judicial member, the majority is termed absolute majority, that is of 2/3 member of present in voting, and that's the basic difference between the two. Okay. Under what circumstances a person can be declared as a proclaimed offender? Sir, under section 82 of the Criminal Procedure Code, there are certain sections under which if a person has been served with a warrant and he's not able to come to the court or get it arrested, and under those sections, then he would be declared as a proclaimed. अनलॉफुल असेंबली से आप क्या समझते हैं? सर, अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 में मेंशन्ड है, कोई भी 5 व्यक्ति अगर मिल के ऐसा कोई कृत्य करते हैं जो सेक्शन 141 में डिफाइंड हैं, तो उसके तहत अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा, और 142 और 143 के तहत उनको पनिशमेंट दी। तो आप उन कृत्य का नाम बताना पसंद करेंगे? जी सर। सर, उन कृत्य में ये आता है कि अगर सरकार की किसी आदेश की अवहेलना करना, या प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कुछ कृत्य करना जो कि इंडियन पीनल कोड या और किसी क्रिमिनल लॉ में पनिशेबल हैं, और ऐसे अन्य भी चीज़ हैं, जैसे सर मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास इन रिलेशन टू फायर है, तो इन चीज़ों के तहत सेक्शन 141 में अनलॉफुल। ओके। सेडिशन क्या होता है? सर, सेडिशन सेक्शन 124 कैपिटल ए में डिफाइंड है। सर, सेक्शन 124 ए कहता है कि कोई भी ऐसा शब्द बोलना या किसी भी प्रकार का ऐसा फिगरेटिवली डिस्क्रिप्शन देना जो कि कंटेम्प्ट हो सकता है किसी सरकार के आदेश का, या सरकार के खिलाफ अगर उसकी सरकार की निंदनीयता हो और जिसका एक विस्तारित रूप से उस पर प्रभाव पड़े, जो कि देश की इंटीग्रिटी पे भी बात आए, तो इस तहत में सेडिशन माना जाएगा। ओके। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि जिस मेंटेनेंस की हम लोग बात करते हैं सेक्शन 125 ऑफ द CRPC, तो वहाँ पे वाइफ्स का जिक्र किया गया है, WIVES, जी सर। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, वो बाइगेमी को बिल्कुल अलाउड नहीं करता है। जी तो ये जो वाइफ्स है किस सेंस में यूज़ किया जाता है? सर, एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन 125 का है वो स्पेसिफाई करता है कि वाइफ उनको भी माना जाएगा जो इस समय किसी व्यक्ति की यथास्थिति में पत्नी नहीं है, और पर उसका भी कोई शादी नहीं हुई है। और अगर सर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो 1956 से पहले जब किसी की अगर 2 शादी थी तो वो अभी भी वैध मानी जाती हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उनकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल सकती है उसमें, तो इस संदर्भ में माना जाए। ठीक, थैंक यू सो मच। अभय जी, आपके नाम का मीनिंग क्या है? सर, अभय का मतलब है निडर। इसका कोई सिनोनिम्स बताएंगे? और अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के हाथरस से हैं। जी सर। हाथरस किस लिए जाना जाता है? सर, हाथरस कई चीज़ों से जाना जाता है। अगर हम बिजनेस के सेंस में जाएं तो सर हाथरस में दाल मिल और हींग का व्यापार बहुत चरम पे है। साथ ही साथ गुलाल और इत्र का भी बहुत प्रमुख केंद्र माना जाता है हाथरस को। चलिए, अच्छा, आपने
BA LLB की है, और कहाँ से किया है? सर फैकल्टी ऑफ लॉ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? सर श्री सर सैयद अहमद खान। इनका रोल क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में? हम देखते हैं क्या रोल है इनका। सर मॉडर्न हिस्ट्री में इनका अहम रोल है। सर प्रथम ये देखा जाता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक इस्टेब्लिश करना, और जिससे कि मुस्लिम जो समुदाय है जो उस समय पिछड़ रहा था एजुकेशन में, तो उनको एक स्तर तक लाना, और उसको जैसा कि उन्होंने AMU की स्थापना भी करी थी, तो AMU की स्थापना ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे करना, ताकि, और जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस की किताब हो। प्लस सर हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए भी उनको एक अहम योगदान है उनका। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 104, जी सर। इस पे बताएंगे कुछ? सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104 SC और ST को 2030 तक जो यथास्थित रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं उनको एक्सटेंड करता है। एक अमेंडमेंट और हुआ है इसमें कुछ? सर जी सर। सर इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो इंडिविजुअल्स थे जिनको रिजर्वेशन दिया जाता था 2 सीट पार्लियामेंट में, उसको निरस्त कर दिया गया है। पूरी पार्लियामेंट में? सर राज्यसभा में 2 का था और स्टेट लेजिस्लेचर में भी था, तो दोनों में कर दिया गया जितना मुझे ज्ञात है। ओके ओके, अपना रोल नंबर बताइए। सर 103449। ओके, एक है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन है सेक्शन 45, जी सर। क्या है वो? सर सेक्शन 45 जो है वो एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में बात करता है कि अगर एक्सपर्ट एविडेंस हैंड राइटिंग से रिलेटेड साइंस आर्ट और सर फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन से रिलेटेड है, तो उसको एक अहम रोल माना जाएगा उसका कि ट्रायल के प्रोसेस में एविडेंशियरी वैल्यू के लिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया था SC/ST सब क्लासिफिकेशन को लेकर, जी सर। बताएंगे? सर जजमेंट का नाम है दविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने ये स्पेसिफाई करा था कि अभी भी SC और ST के कई ऐसे समुदाय हैं जिनको उस स्तर तक रिजर्वेशन के प्रोविज़न के बेनिफिट्स नहीं मिले हैं जो उनको मिलने चाहिए थे, और इसलिए उनमें सब क्लासिफिकेशन भी करना ज़रूरी है। अच्छा, बिहार को अगर यूनियन टेरेटरी बना दिया जाए जी सर। तो ये आर्टिकल 368 का अमेंड माना जाएगा? सर अगर किसी भी यूनियन टेरिटरी को अगर मतलब किसी भी स्टेट को अगर यूनियन टेरिटरी बनाना है तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो बनाया जा सकता है। अंडर विच आर्टिकल? सर इफ़ आई कुड रिकॉल आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड। अभी आपने कहा स्टेट ऑफ देवेंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 5 जजेज बेंच, है ना? तो जब तक आपके डाटा बिल्कुल सही ना हो तब आप इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है? दिस इज 7 जजेज बेंच बेसिकली एंड द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरी चीज़ ये बताइए कि साहब अभी सर पूछ रहे थे कि जो ओल्ड एविडेंस एक्ट है उसमें एक्सपर्ट एविडेंस आपने पढ़ा तो वहाँ पे किन किन चीज़ों के लिए था वो आपने गिनाया, लेकिन अभी जो BS से आया है क्या उसमें कोई चेंज हुआ है इसके स्कोप में, एरिया में कुछ? सर मुझे कोई इस बारे में कोई ज्ञात नहीं है अभी। वहाँ पे इसके स्कोप को बड़ा वाइड कर दिया गया और लिख दिया केवल 5 फील्ड ही नहीं रह गए अब इन एनी अदर फील्ड। ओके सर। आप एक चीज़ बताइए, वेदर दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? नो सर, एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट। ओके, किस केस में कहा था? सर एक नरेश अग्रवाल वर्सेस स्टेट का जजमेंट है, बट अभी सर सब जुडाइज है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें हियरिंग हो चुकी है, बट अभी जजमेंट आना बाकी है। ठीक, चलिए, ओके, शुक्रिया सर। अभी जी बैठिए। जी सर। कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लगा। अब तक के जितने भी इंटरव्यू हमने आज लिए हैं आपका सबसे अच्छा लगा है हमें। तो अब आपका वॉइस बहुत, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप कोट पहन के जाएंगे तो और भी बॉडी लैंग्वेज। सर वो ये है कि कैरी अभी करने में इशू था। तब एक बता रहा हूँ, वॉइस, कम्युनिकेशन, नॉलेज, ये सब सही है आपका। थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट पर देख लेना। ओके सर। ऑल द बेस्ट।